ओके वेलकम। हम डिस्कस कर रहे थे वालेकुम अस्सलाम क्रोनिक हार्ट फेलियर के बारे में। क्रोनिक हार्ट फेलियर इज characterized by imbalance of neurohormonal adaptive mechanism with a net result of excessive vasoconstriction and salt and water retention. Catecholamines concentration in the blood are epinephrine 2 to 3 times higher at the rest than in the healthy subjects. Okay, so circulating norepinephrine is increased much more during equal load in the patients from CHF than in the healthy subjects. Okay, well, decreased number of beta 1 is lead to decreased sensitivity of cardiomyocytes to catecholamines, इसकी वजह से contractility decrease हो जाती है। एंड दूसरी कॉज सिस्टेमिक रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिवेशन है। अगर हार्ट फेलियर होएगा तो जैसे ही कार्डियक आउटपुट कम होएगी, किडनी की तरफ परफ्यूजन कम होएगी, दैट विल स्टिमुलेट रास सिस्टम, और रास सिस्टम की वजह से अगेन हार्ट फेलियर वर्स होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट्स को जनरलाइज बीमा हो जाएगा। वेल, catecholamines and RAS system compensatory mechanisms increase heart function and arterial blood pressure. Role of angiotensin II in development of heart failure, vasoconstriction mainly in resistant vessels, retention of sodium, increased blood volume, and releasing of arginine, vasopressin peptide, ABP antidiuretic hormone. Arginine vasopressin peptide ABP stands for neurohypophysis. Facilitation of norepinephrine release from sympathetic nerve endings that increase the sensitivity of pressure valve to norepinephrine. Mitogenic effect on the smooth muscles in the vessels and on cardiomyocytes in the heart that increase that leads to hypertrophy of the left ventricle, especially LVH. The mitogenic effects on fibrocytes in the vessel wall and in the myocardium, constriction of vas efferents in the glomerulus. Sensation of thirst will be increased, secretion of aldosterone from the adrenal glands will be increased, and mesangial cell contraction that will lead to decreased GFR. Okay. Pathogenesis of heart failure like index events occurs primarily causing of heart damage. Secondary damage occurs in the form of remodeling, adrenergic system, cytokine systems are involved in the remodeling. These are compensatory mechanisms. Index events like occurs injection fraction less decreases from 60 to lead to 20%. First, patient is asymptomatic as the time passes, patients become symptomatic. And primary healing and secondary healing. Primary causes of heart damage and secondary occurs in the form of remodeling. Pathophysiology of diastolic heart failure. The systolic heart failure, failure of ejection fraction of the heart, and diastolic heart failure, failure of the filling the ventricles, increased resistance to filling of ventricles. Diastolic failure is widely recognized clinically, but which of the
cardiac cycle is real diastole. मोस्टली प्रॉब्लम डायस्टोल में अकर होता है, क्योंकि अगर नॉर्मल रिलैक्सेशन नहीं होगी तो प्रॉपर फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स नहीं होगी। अगर प्रॉपर फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स नहीं होगी तो अल्टीमेटली दैट विल डिफेक्ट इन इजेक्शन फ्रैक्शंस। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या है कि इट इज ए पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस characterized by symptoms and signs of congestive heart failure which is caused by increased filling resistance of ventricles and increased intraventricular diastolic pressure. In primary diastolic heart failure, most signs and symptoms of systolic dysfunction is present. Up to 40% of patients suffering from heart failure. प्राइमरी के अंदर 40% पेशेंट्स हार्ट फेलियर में सफ़र कर रहे होते हैं और दे आर एसिम्प्टोमेटिक। Secondary diastolic heart failure or diastolic dysfunction is consequences of primary systolic. Main causes and pathomechanics of diastolic heart failure, like structural disorders that will increase passive chamber stiffness. इंट्रामायोकार्डियल प्रॉब्लम्स हैं तो मायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो सकती है, एमिलियोसिस, हाइपरट्रॉफी, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है। एक्स्ट्रा मायोकार्डियल प्रॉब्लम होंगे तो उसमें कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। और फंक्शनल डिसऑर्डर्स होंगे, लीगल स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स, इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शनल डिसऑर्डर्स तो अल्टीमेटली देयर इज ए प्रॉब्लम इन रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर्स। मायोकार्डियल इस्कीमिया, advanced hypertrophy of ventricle is there, feeling myocardium or asynchrony in the heart ventricle functions may occur. Causes and mechanisms participating on impaired ventricle relaxations like physiological changes in the chambers, relaxation due to prolonged ventricle contractions. Relaxation of ventricle is not impaired. And if we talk about the pathological changes, then pathological changes in the chamber relaxation due to impaired relaxation process. One is either delayed relaxation like retarded condition में, and other one is incomplete slowed relaxations. That is seen in the figures like left ventricle volume. First one is abnormal relaxation A. B is pericardial restrained. C option, C shows increased chamber stiffness. And fourth one is chamber dilatations. That is the mechanism that causes diastolic dysfunction. What are the consequences of impaired ventricular relaxations? Like filling of ventricle is more dependent on diastasis and on the systole of atrias than in the healthy subjects. Symptoms and signs occurs on the exercise intolerance, like early sign of diastolic failure and decreased coronary blood flow during diastole. बेटा ये अगर व्हाइट बोर्ड पे समझाया जाता तो ये मुश्किल नहीं था। गीला अगर टाइम हुआ तो मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझा दूंगा, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। Certain causes and mechanics involved in the development of ventricle stiffness, for example, ventricle compliance, passive property of ventricle है, लेकिन source of compliance depends on the cardiomyocytes and other types of cell in the heart tissue if stressing, like sarcomeres है, actin myocytes हैं, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। Sure, inshallah. Decreased ventricle compliance is caused by structural abnormalities like localized in myocardium and extramyocardial tissue. Intramyocardial causes includes myocardial fibrosis, hypertrophy of ventricle wall, restrictive cardiomyopathy है, ये myocarditis है।
एक्स्ट्रा मायोकार्डियल काजेज लाइक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। रोल ऑफ मायोकार्डियल रिमॉडलिंग इन जेनेसिस ऑफ हार्ट फेलियर फॉर एग्जांपल। अडैप्टिव रिमॉडलिंग ऑफ हार्ट है, ये पैथोलॉजिकल रिमॉडलिंग ऑफ हार्ट है। अगेन डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी रिमॉडलिंग है, ये सेकेंडरी रिमॉडलिंग है। Main causes and mechanics involved in the pathological remodeling of the heart. First one is increase amount of size of myocytes like hypertrophy होना शुरू हो जाएगी। अब hypertrophy होगी उसकी वजह क्या है? First one is increase volume and pressure load। Eccentric है, ये concentric hypertrophy होना शुरू हो जाएगी। दूसरा हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स है भाई, नॉरएपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन 2 है, ये एंडोथेलिन है। थर्ड वन आर्किनिन भी हो सकता है, एवीपी भी हो सकता है। और इंक्रीज परसेंटेज ऑफ नॉन myocytic cells in the myocardium and their influence on the structure and function of the heart. Okay, this all you will be present. I know that. Don't worry, your attendance is marked already. Okay, endothelial cells like endotheliums mitogenic ability that will increase stimulation growth of smooth muscle cells of the vessels instead of that fibroblast. Okay, you know. बेटा आपकी अटेंडेंस लग गई है ऑलरेडी, जो लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे शो हो रहे होते हैं मुझे ना अटेंडीज में। इसके अलावा फिब्रोब्लास्ट क्या करते हैं? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोलेजेंस, COLLAGENS है, कोलेजन की प्रोडक्शन ज़्यादा करवाते हैं, ये हीलिंग में हेल्प आउट कर रही है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर क्या होता है? अगर फॉरवर्ड फेलियर है तो फॉरवर्ड फेलियर में सिम्टम रिजल्ट्स फ्रॉम इनएबिलिटी ऑफ हार्ट from inability of heart to pump enough blood to the periphery from left heart or to the lungs from the right heart. Okay, forward failure of the left heart, muscle weakness होगी, fatigue होगी, dyspepsia होएगा, oliguria होएगा, general mechanisms टिश्यू hypoperfusion होना शुरू हो जाएगी। Forward failure of right failure right heart side होएगा तो हाइपोपरफियन आपकी लंग्स होना शुरू हो जाएगी, गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आएगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू लेफ्ट हार्ट होना शुरू हो जाएगी। And if there is a backward failure, symptom results from inability of the heart to accept the blood coming from the periphery and from the lungs. तो उसके रिजल्ट में बैकवर्ड फेलियर ऑफ द लेफ्ट हार्ट, इंक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर्स, डिज़निया होएगा, टिकिपनिया होएगा, पल्मोनरी एडिमा होएगा, कार्डियक अस्थमा भी उसे कहा जाता है। That will lead to arterial hypoxemia and hypercapnia. और बेटा सेंड अप आई थिंक कॉलेज कब ओपन हो रहा है? 9 जनवरी को, 11 जनवरी को। जैसे कॉलेज ओपन होंगे उसके बाद ही होंगे। अगर कॉलेज ओपन हो गया तो सेंड अप हो जाएंगे, अदरवाइज ऑनलाइन हो जाएंगे। आपकी क्लासेस 11 जनवरी से रिज्यूम होंगी ना? Back failure of the right heart, increased pressure in the systemic venous system leads to peripheral edemas, hepatomegaly, ascites, and arterial. These are certain characteristics of pathophysiology and physiological cardiac hypertrophy. आप इस स्लाइड्स को 2 मिनट लें पढ़ें।
और देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, उसके बाद इसको डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर मैंने ये बताया था कि अगर ऑनलाइन क्लासेस रिज्यूम हो जाती हैं 11 जैन से, तो अल्टीमेटली आपके सेंड अप एग्ज़ाम फिजिकली हो जाएंगे, अदरवाइज ऑनलाइन हो जाएंगे आफ्टर 11 जैन विल बी डिसाइडेड। ओके, ये स्लाइड देख ली आप लोगों ने, क्या समझ आई है इसमें? फिजियोलॉजिकल कार्डियक हाइपरट्रॉफी क्या है और पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी क्या है, क्या क्या वजह हो सकती है और स्टिमुलाई क्या क्या है? इफ वी टॉक अबाउट द कार्डियक हाइपरट्रॉफी पैथोलॉजिकल कंडीशन में, तो उसमें स्टिमुलाई प्रेशर लोड इन द डिजीज सेटिंग लाइक हाइपरटेंशन है, एओर्टिक कॉर्टेशन है, वॉल्यूम ओवरलोड है, वेलुलर डिजीज है, कार्डियोमायोपैथीज हैं। एंड अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल, तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या क्रोनिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग बॉडी, रनिंग है, पेशेंट वॉकिंग के साथ है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, वेट लिफ्टिंग है, ये नॉर्मल भी हो रही होती है। एग्जैक्टली अदीला बेटा, ऐसे ही होगा। तो पैथोलॉजिकल में कोई भी डिजीज़ की वजह से है, लेकिन फिजियोलॉजी में क्या होगा कि कोई फिजिकल एक्टिविटी है उसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है। लाइक कार्डिक रिजर्व की बात करें तो जो एथलीट्स होते हैं उनके अंदर 35 लीटर तक कार्डिक रिजर्व चली जाती है। और इफ वी टॉक अबाउट द कार्डियो मार्फोलॉजी, कार्डिक मार्फोलॉजी के अंदर जो मायोसाइट्स वॉल्यूम है उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, न्यू सार्कोमेयर्स की फॉर्मेशन होएगी, और इसके अलावा जो मायोसाइट्स हैं उनकी नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस नॉर्मली हो रही होती है।
लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल होएगी तो उसमें मायोसाइट्स का वॉल्यूम इंक्रीज होएगा और न्यू सार्कोमियर्स बनना शुरू हो जाएंगे। फीटल जीन एक्सप्रेशन में अनरेगुलेटेड होती है, लेकिन फिजियोलॉजिकल में रिलेटिवली नॉर्मल होएगी। Cardiac function depressed over the time. Ultimately, there was a disease. Either it was a hypertension, contraction of aorta, cardiomyopathy, pericarditis, whatever the condition is that. But if we talk about a physiological cardiac hypertrophy, that is normal and might be enhanced. Cardiac reserve completely reversible नहीं होगी, लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल है तो अल्टीमेटली रिवर्स हो सकती है। अगर पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं तो उसमें हार्ट फेलियर की वजह से मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो उसमें मोर्टेलिटी रेट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट गोल्स हैं जिनको हम अटेन करके वो पेशेंट्स जो रिस्क पे होते हैं हार्ट फेलियर के या हार्ट फेलियर से सफ़र कर रहे होते हैं उनको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, डिक्रीजिंग इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, पहली जो कंडीशन है हमने हार्ट के ऊपर जो वॉल्यूम ओवरलोड है उसको डिक्रीज करना है। और वो डिक्रीज कैसे कर सकते हैं कि वेनस रिटर्न को किसी तरीके से कम किया जा सके। और वेनस रिटर्न को कम करने के लिए हमें फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी से निकालना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। डिक्रीजिंग वेनस रिटर्न, अब डिक्रीज प्रीलोड, डिक्रीज द वॉल्यूम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोल। और उसके लिए मेडिकेशन जो दे रहे होते हैं जिनके अंदर डायूरेटिक्स हैं, लॉसिक्स या फ्रूसीमाइड दिया जा रहा होता है। अब ये फ्रूसीमाइड क्या करता है कि ये फ्लूइड वॉल्यूम को डिक्रीज करवा रहा होता है, पॉलीयूरिया काज कर रहा होता है, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होती है, जिससे जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है दैट इज डिक्रीज्ड। दूसरा, आफ्टर लोड को हमें कम करना होता है। कैसे कम कर सकते हैं, लाइक डिक्रीज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को हमने कम करना होता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करना होता है, पल्मोनरी कंजेशन को डिक्रीज करना होता है। मेडिकेशंस में हमने वेसोडाइलेटर्स देने होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने होते हैं। अगर पेशेंट पेन सफ़र कर रहा है तो मॉर्फिन वगैरह दी जा रही होती है। डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स दिए जा रहे होते हैं लाइक निट्रोग्लाइसिन है। ये क्या करेगा, ये पल्मोनरी कंजेशन को मैक्सिमाइज करेगा, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करवा के डिक्रीज करवा रहा होता है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इंप्रूविंग गैस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजनेशन, डेफिनेटली अगर हार्ट फेलियर है, पल्मोनरी एडीमा हो चुका है, ये इंट्राएलुलर एडीमा हो चुका है, इंट्राएलुलर फ्लूइड अकमुलेट हो चुका है, तो ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती, इसलिए हमें सप्लीमेंट ऑक्सीजन दी जा रही होती है। और चेस्ट पेन हो रहा होता है या इधर प्लूरलिथियन हो गया है तो अल्टीमेटली पेन हो रहा होता है, तो उसके लिए मॉर्फिन वगैरह पेन को रिलीव करने के लिए दी जा रही होती है, लेकिन सवेयर केसेस। अगर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन से मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा तो यू कैन गो फॉर इंटुबेशन एंड वेंटिलेशन। इसके अलावा कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव करना होता है ताकि पेशेंट्स की जो लाइफ है उसकी एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया जा सके। लाइक हमने कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना होता है विदाउट इंक्रीजिंग कार्डियक ऑक्सीजन कंजप्शन। ये ना हो कि कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी तो बढ़ गई है लेकिन ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही और बाद में पता चले कि कार्डियोमायोसाइट्स की नेक्रोसिस होना शुरू हो गई है, कार्डियोमायोसाइट्स डैमेज होना शुरू हो गए हैं ड्यू टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स को मेजर करना होता है। पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर जो 14 to 18 mmHg नॉर्मल होता है। इनोट्रोपिक मेडिकेशंस इनके अंदर डाइऑक्सिन आता है, ये दे रहे होते हैं। साथ में हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट, लाइक डिब्यूटामीन है, इनोट्रोपिक और वेसोडाइलेटर्स दिए जा रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट एंजाइटी को रिड्यूस किया जा रहा होता है। सेडेटिव एक्शन ऑफ आईवी मॉर्फिन, कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज कर रही होती है मॉर्फिन, इसलिए प्रिकॉशनली दी जा रही होती है। डिटरमाइन एंड ट्रीट अंडरलाइंग काज, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेलियर है वो आपने देखना है।
और एग्रेसिव ड्रग थेरेपी के साथ उसको ट्रीट करना है। इधर मिक्स भी हो सकता है, सिस्टोलिक अकेला भी हो सकता है, डायस्टोलिक भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, बाइवेंट्रिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो उनको मेडिकेशन के साथ ट्रीट किया जा रहा होता है, इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एंड दैट्स ऑल। होप सो हमने एक शॉर्ट सा रिवीजन लिया है आज हार्ट फेलियर का। हमें कुछ चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों का पता चल गया है, लाइक फॉरवर्ड फेलियर क्या है, बैकवर्ड फेलियर क्या है, सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, बाइवेंट्रिकल क्या है, मिक्स्ड क्या है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो पूछ लें। और अगर हबीब है इसकी क्लास में तो हबीब को कहना काइंडली मुझे अटेंडेंस शेयर कर दे व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। इसमें जो नेहा की क्लासिफिकेशन है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। हार्ट फेलियर की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। इजेक्शन फ्रैक्शन की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होती है, कैलकुलेट कैसे की जाती है। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की ये क्लासिफिकेशन और ये नेहा की क्लासिफिकेशन। बस दैट्स ऑल। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जो क्लासेस रिज्यूम होंगी वो 11 जनवरी है। सिलेबस आप लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पढ़ लीजिएगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती वो चीज़ें हाईलाइट कर लीजिएगा। उनको हम अगर टाइम मिला हमें तो वाइट कोड बोर्ड के ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं अगर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी, उम्मीद है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो अल्टीमेटली समझ नहीं आनी। तो सो के आप लोग पढ़ेंगे।